السلام علیکم سامعین، علم کی بات دیکھنے والوں کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی سٹوری جو حقیقت پر مبنی ہے آپ کو سنائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ تو جی سامعین، ہم اپنی سٹوری کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو جی سامعین، ہم اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک انکل سکول ٹیچر تھے۔ تنخواہ ان کی معمولی تھی مگر بہت ہی ایماندار سمجھدار آدمی تھے، اسی لیے سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، 3 مرلے کا تھا، جس میں 2 کمرے اور آگے صحن اتنا تھا کہ بمشکل 4 چارپائیاں آ سکتی تھیں۔ انکل کے 8 بچے تھے، 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹے ابھی چھوٹے تھے اور پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے۔ ماسٹر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ چکے تھے۔ انہیں 2 بچیوں کی شادی کی فکر کھائی جاتی تھی کیونکہ 4 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر ان کی شادیوں کے اخراجات نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ انکل نے کافی قرض لے رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب ریٹائرمنٹ کی رقم ملے گی قرض ادا کر دوں گا۔ لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ماسٹر صاحب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات کا سب کو بہت صدمہ تھا۔ گھر میں 5 افراد، کھانے والے اور کمانے والا کوئی نہیں۔ زرعی زمین بھی اتنی نہیں تھی اور رکھوالا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ ماسٹر صاحب کی 5ویں بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی وفات کا گہرا صدمہ لیا اور رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی، ہم بچپن کی پڑوسی اور کلاس فیلو تھے۔ میں اس کی دلجوئی کے لیے ہر روز اس کے گھر جاتی تھی، اس کو سمجھاتی تھی اگر تم نے ہمت ہار دی تو تمہارے چھوٹے بھائی بہنوں کا کیا بنے گا اور تمہاری بیچاری ماں کس کا منہ دیکھیں گی۔ تم حوصلے سے کام لو، اپنے قبیلے کی باغ ڈور خود سنبھال لو۔ تمہارے بھائی ابھی بہت چھوٹے ہیں اور نادان ہیں تو گھر کی ذمہ داری اب تمہارے پر ہی ہے۔ میرے ہمت دلانے پر اس نے حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا۔ بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں مگر وہ بھی امیر گھروں میں نہیں بیائی گئی تھیں کہ ماں اور یتیم بہن بھائیوں کا مالی ساتھ دے سکے، بلکہ وہ ہر روز بچوں سمیت گھر آ جاتی اور 2 دن یہیں قیام کرتی اور ان کے اخراجات ماں کو برداشت کرنے پڑتے۔ یوں 4 بہنیں باری باری آ جاتی۔ اگر وہ خود نہ آ پاتی تو ان کے شوہر بچے لے کر آ جاتے اور کہتے کہ بچے ضد کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے کہ نانی کے گھر جانا ہے۔ گویا یہ 4 بڑی بہنیں لمحے بھر کو ماں اور چھوٹے بھائی بہنوں کو فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ گھر میں ہر وقت میلے کا سما تھا جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ انہوں نے ماں کی مالی امداد تو کیا کرنی تھی، الٹا ماں کو مقروض کر کے چلے جاتی تھیں۔ بچے نقصان کرتے تھے، کبھی ٹینکی کا پانی خالی کر دیتے تھے، کبھی صابن ضائع کرتے تھے، کبھی ٹافیاں مانگتے تھے اور طرح طرح کے کھانوں کی فرمائشیں کرتے تھے، اور کبھی کسی کو سوئیاں کھانی ہوتی تھی تو کبھی کسی کو چاول۔ یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں آتی نا۔ عائشہ کی 4 بڑی بہنیں گھر کے نزدیک ہی رہتی تھیں، لیکن جب ماں سے ملنے آتی تو پھر جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ سچ ہی ہے، ماں باپ امیر ہوں یا غریب ہوں، بیٹیوں کے لیے میکے کی کشش باقی رہتی ہے۔ عائشہ یہ کبھی نہ سوچتی تھی کہ وہ بہنیں ماں کے لیے آتی ہیں یا بھائی بہنوں کے لیے آتی ہیں۔ دراصل وہ اس لیے آتی تھی کہ ان کے بچوں کے ساتھ ماں کا دل بہلتا رہے گا۔ جب تک ماسٹر صاحب زندہ تھے، شادی شدہ بیٹیاں اور ان کے بچوں کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بیٹیاں میکے نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی، اور گھر میں ہونے والے اخراجات بھی بخوبی برداشت کر لیتے تھے۔ مگر عائشہ پر ان کی بہنوں اور ان کے بچوں پر ہونے والے اخراجات کھل کے سامنے آنے لگے تھے۔ 3 مرلے کے مکان میں 5 افراد کا سمانا مشکل تھا کہ سارے بھائی اور بہنوں کا آ جانا ان کے سکون کو دھرم بھرم کر دیتا تھا۔ اوپر سے بڑی بہنیں 4 پائی پر بیٹھ جاتی اور حکم چلاتی۔ وہ خود کام کو تو ہاتھ نہ لگاتی، الٹا سارے کام کاج کا بوجھ عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن پر ڈال دیتی اور اپنے بچے بھی خالاؤں کے حوالے کر دیتی اور کہتی کہ ان کا خیال رکھنا، اور خود آرام فرماتی، اور ماں ان کے کھانے پینے اور رکھ رکھاؤ کا خیال رکھنے میں مصروف ہو جاتی۔
اور عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن بچوں کو संभालने में मसरूफ हो जाती। इन्हें वक्त न मिलता कि वो किताबों को हाथ लगा सकती। यूं बहनों का हर वक्त आ जाना आयशा को एक आंख न भाता था, इस बात का कि बहनों को कतई एहसास नहीं है। ये एक दिन की बात नहीं थी कि आयशा को बर्दाश्त हो जाता, ये तो हर रोज का मामला बन गया था। 2 दिन गुजरते इनकी बहनों में से एक अपने मेके आ जाती। वो अपनी तरफ से तो माँ की दिलजोई करने आती थी, मगर जाती जाती अपनी बेवा माँ को मकरूज कर जाती थी। माँ तो आखिर माँ थी ना, वो अपनी बेटी और दामाद और उसके बच्चों को कैसे मना कर सकती थी। मगर आयशा और इसकी छोटी बहन के नाक में दम कर जाती थी। आयशा चिड़चिड़ी और बदमिजाज होती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से आयशा ने एफए मुकम्मल किया और एजुकेशनल ट्रेनिंग में दाखिला ले लिया। जब इसको सनद मिली तो मास्टर साहब के एक दरीना दोस्त की सिफारिश से इसको नौकरी मिल गई, मगर एक देहाती स्कूल में एक टीचर के तौर पर तैनात हुई। अब मसला शहर से देहात जाने और वापसी आने का था। ये रास्ता करीब आधे घंटे का था, मगर बहुत दुश्वार था। शहर में पक्की सड़कों के बाद देहात में सवारी नहीं जाती थी, मील भर पैदल चलना पड़ता था। शहर से पहले 2 टीचर्स वहां जाती थीं, जिनको सड़क से जिम्मेदार की गाड़ी स्कूल तक पहुंचाती थी। इसके बाद सड़क से उन्होंने एक वैगन लगवाई हुई थी जो इन्हें लेकर शहर वापस आ जाती थी। 6 माह ये सिलसिला बखूबी चलता रहा। फिर दूसरी टीचर शादी की वजह से 2 माह की छुट्टियों पर चली गई। अब आयशा अकेली रह गई। वो स्कूल को भी संभालती थी और बच्चियों को भी पढ़ाती थी। बामुश्किल कुल क्लासों में 25 से 30 लड़कियां थीं। वो सारी जमातों की लड़कियों को इकट्ठा करके एक क्लास में बिठा देती और इधर ही इनको सबक देती थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा जब तक पहली टीचर शादी की छुट्टियों से वापस नहीं आई। स्कूल का मालिक एक जिम्मेदार था। इसके घर की खवातीन बहुत ही आला इखलाक की हामिल औरतें थीं। वो टीचर्स का ख्याल रखती थीं। छुट्टी के बाद दोनों टीचर्स इनके घर चली जाती थीं। वो खाना खिलाती, जीप में सड़क तक भिजवा देती और फिर वहां से वैगन उनकी मुंतजिर होती जो उनको लेकर शहर तक आ जाती। जल्द ही आयशा की दोस्ती जिम्मेदार की बहन से हो गई जो गैर शादीशुदा थी। वो आयशा से उम्र में दुगनी थी, मगर संजीदा और हसास तबीयत की मालिक थी। खानदान में इसके जोड़ का रिश्ता ना होने की वजह से वो अभी तक कंवारी थी और तन्हाई का शिकार थी। इसी तरह चंद घड़ियां आयशा के साथ गुजारने पर उसे राहत हासिल होती थी। जिम्मेदार की बहन का नाम कंवल था। कंवल आयशा को बहुत पसंद करती थी। वो इसरार करके इसे रोक लेती थी, जबकि आयशा को इसे घर जाने की जल्दी होती थी अपनी वालिदा की वजह से। कंवल का आयशा को पसंद करना और उसके साथ बात करना और वक्त गुजारना इतना अच्छा लगने लगा कि आयशा को देर तक कंवल के पास रुकना पड़ता उसके इसरार पर। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हालात पैदा हो गए कि आयशा उसके पास देर तक रुकती, हत्ता कि उनकी वैगन को खाली वापस जाना पड़ता और बाद में दोनों टीचर्स को कंवल अपनी जाती सवारी में शहर तक भिजवा देती। 1-2 बार ऐसा होने के बाद पहली टीचर ने इसरार के बावजूद माजरत से काम लिया और छुट्टी के फौरन बाद घर की राह पकड़ लेती और मुरव्वत में आयशा फंस जाती। कंवल दोपहर को टेबल पर खाना लगा देती और खाने के बाद एक लजीज चाय उनकी मुंतजिर होती। फिर देर तक गपशप चलती रहती, यहाँ तक कि शाम के 4 बज जाते। कंवल अपने भतीजे के साथ आयशा को उसके घर पर भिजवा देती। माँ को आयशा के रोज रोज देर से आने पर इतराज होने लगा। माँ को मोहल्ले वालों की भी फिक्र खाई जाती थी कि वो सवाल करना शुरू कर देंगे कि ये देर से क्यों आती है। जब आयशा की माँ ने इसरार किया कि तुम ये मुलाजमत छोड़ दो क्योंकि मोहल्ले में बहुत बदनामी होगी, तो आयशा ने कंवल बीबी को माँ की नाराजगी से आगाह किया। कंवल ये बात सुनने के बाद अब्दुल्ला, उसकी वालदा और बहन को लेकर आयशा के घर पहुंच गई और बयान किया कि हमें आयशा पसंद है, आपसे रिश्ते की दरख्वास्त करने आए हैं। आयशा की माँ ने उनकी खूब खातिर मदारत और आओ भगत की और इसके साथ माजरत की कि आयशा की शादी गैर जात में नहीं कर सकती। बेटी का रिश्ता वो अपने खानदान में ही करेंगे। बरादरी की मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती, वो गैरों में नहीं कर सकती। कंवल ने कहा, हम आपकी बरादरी के बड़ों को मना लेंगे। माँ ने कहा, पर वो नहीं मानेंगे। आप ये मुद्दा किसी से बयान ना ही करें तो अच्छा है, वरना वो लोग आयशा की मुलाजमत खत्म करवा देंगे और फिर हमारे घर का
दाल पानी भी बंद हो जाएगा। ये वजह इनकार की तो नहीं, वो लोग तो आपकी किफालत नहीं करते और हमने तो अपनी अमीरी का फर्क भी मिटा दिया है क्योंकि हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है। खवातीन के जवाब पर आयशा की माँ ने बोला, आप मुझको सोचने की मोहलत दें, मैं अपने दामाद और बेटियों को एतमाद में ले लूं, फिर आपको बता दूंगी। कमल ने कहा, हाँ आप सोच लीजिए, हम दोबारा आ जाएंगी। वो तो ये कहकर चली गई, मगर आयशा की माँ को सोचों के समंदर में धक्का दे गई। साफ जाहिर था जब लड़के के लिए रिश्ता मांग ही रही थी, इसने आयशा की पसंदीदगी का भी दारोमदार था, वरना इनका और मास्टर साहब के घराने का कोई जोड़ मेल नहीं था। माँ ये सोचती थी कि लाख लड़की पसंद आ जाए, अगर गरीब घर की हो तो अमीर इसको अपने घर की बहू बनाने में 1000 बार सोचते हैं। अब्दुल्ला जिम्मेदार का लाडला बेटा है, वो इसकी खुशी को पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। आयशा की माँ ने तो यहाँ तक सोच रखा था कि शायद अपने बेटे की दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये रिश्ता मांग रहे हैं। चंद दिन के बाद आयशा से दिल भर जाएगा तो दूसरी शादी कर देंगे। आयशा की माँ इसी फिक्र में मरी जा रही थी और ये सोच रही थी कि रिश्ता कर तो लूं, मगर इनके मयार के खातिर शादी के अखराजात कहां से लाऊंगी, दामाद के लिए उनके लवाजमात कैसे पूरे करूंगी। आयशा अलबत्ता बहुत खुश थी, दिल से चाहती भी थी कि इसका रिश्ता इसी जिम्मेदार घराने में हो जाए। अपनी बड़ी बहन की बेहिसी और घर के माहौल से वो बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। अब अपनी गुर्बत इसको सताने लगी थी। वो चाहती थी कि माँ इस रिश्ते से इनकार ना करे। कई बार अब्दुल्ला ने इसे देहात से घर तक पहुंचाया था तो रास्ते में जो बातें होती थी उन्होंने एक दूसरे की आपस में पसंदीदगी का इजहार कर दिया था। वो जल्द अज जल्द अपने घर के इस माहौल से छुटकारा हासिल करना चाहती थी और सोचती थी कि ऐसे अमीर घर का रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है, और माँ जाने किन सोचों में गुम थी। आयशा ने मुझसे कहा कि अम्मी को समझाओ, आखिर इस रिश्ते में क्या कबाहत है, वो किस वजह से डरती हैं। जब से होश संभाला है हमने गुर्बत ही गुर्बत देखी है और ऊपर से चारों बड़ी बहनें सांस नहीं लेने देती। हम दिन रात परेशान रहते हैं, घर का माहौल ही परेशान कुन बन गया है। आयशा ने कहा कि मैं पुरसुकून जिंदगी चाहती हूँ, ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ कम से कम दाल रोटी की फिक्र से आजाद हो सकूं, आज के साथ कल की फिक्र ना हो। और साथ ही कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश रहूंगी, और मैं सोच रही थी मेरा इतना अच्छा रिश्ता आने पर माँ खुश होगी, अकल से काम लेंगी और इस रिश्ते को इनकार नहीं करेंगी, मगर मेरी माँ नहीं मान रही। तो बताओ मैं क्या करूँ। वाकई खाला गलती कर रही हैं। ऐसे रिश्ते हम जैसी लड़कियों को कब मिलते हैं। गर्ज कि खाला ने फरासत से काम ना लिया। जिम्मेदार के घर की औरतें कई बार इनके घर आईं, खाला हर बार इनकार कर देती। बिलाखिर एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। एक रोज जब आयशा स्कूल पढ़ाने गई तो वापस नहीं आई। माँ ने तमाम दिन इंतजार किया, यहाँ तक कि रात हो गई, मगर वो वापस नहीं आई। तो माँ का दिल दहक कर रह गया। वो हमारे घर आई और अम्मी से कहा, बहन मैं बहुत परेशान हूँ, जरूर मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा पेश आया है। मुझे लगता है उन जिम्मेदारों ने मेरी आयशा के साथ कुछ गलत किया है, उन्होंने बदला लिया है। काश मैं अकल से काम लेती और हाँ कह देती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ना था। हाँ बहन, तुमने हाँ की होती तो बेटी इज्जत से रुखसत होती। बड़े लोग इनकार के आदी नहीं होते। अब बेटी भी गई और बदनामी का दाग भी लग गया। खाला जी आंसू पूंछती हुई चली गई। जब एक हफ्ता गुजर गया तो इन्हें गशी के दौरे पड़ने लगे कि अल्लाह जाने आयशा के साथ क्या हुआ, वो किस हाल में है और कहाँ है। सवालों का एक तूफान खाला के दिमाग में उमड़ उमड़ के आ रहा था। वो रोज रोती अम्मी को दिल का हाल कहती और अम्मी बेचारी इनको चुप कराती रहती। जब मेरी वालदा से भी मोहल्ले वाली पूछने लगती कि आयशा कहाँ गई है तो मेरी अम्मी इसका जवाब ये देती कि उसकी शादी हो गई है, और वो हैरानगी का इस तरह मुजाहिरा करती कि हैं शादी कैसे हो गई, ना ढोल बजा ना ताशे ना बारात आई, फिर आयशा की शादी कैसे हो गई। हर किसी के मुंह पर एक ही बात थी कि आयशा भाग गई है। कभी आयशा की माँ की खामोशी आड़े आती। ये घराना अपने रख रखाव की वजह से मोहल्ले में बहुत मुअज्जज था।
गुर्बत के बावजूद लोग इनकी इज्जत करते थे और सदियों की इज्जत एक लम्हे में खाक में मिल गई। सबसे ज्यादा शामत आयशा की छोटी बहन की आई। उसका कॉलेज जाना बंद हो गया। सब इस आयशा की वजह से हुआ है, क्योंकि आयशा की छोटी बहन से उसके कॉलेज की सहेलियां ये पूछती कि आयशा कहाँ है, तुम्हारी बहन घर से भाग गई है। और मोहल्ले की जो लड़कियां आयशा की छोटी बहन के साथ पढ़ती थीं, उन्होंने इसका जीना मरना हराम कर दिया था। अब तो आयशा को घर से गए 7 बरस गुजर गए थे। घर वालों ने समझा कि वो हमारे लिए मर गई है। एक दिन इत्तेफाक से वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिल गई। हम एक दूसरे के आमने सामने एक ही डब्बे में सवार थे। मुझे बात करने का मौका मिला तो मैंने आयशा से पूछा कि क्या तुम खुश हो? तो आयशा ने जवाब दिया, हाँ मैं खुश हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, मगर मुझे एक बात का अफसोस सारी जिंदगी रहेगा कि मैंने अपनी बेवा माँ के साथ अच्छा नहीं किया। उसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और मैंने उसके साथ क्या किया। और मैंने अपनी छोटी बहन जिंदगी भी साथ साथ बर्बाद की और अपने भाइयों का वकार, उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया और सबसे बढ़कर अपने बाप की पगड़ी को खाकस्तर कर दिया। हर दिन, हर सुबह, हर शाम मैं अपने माँ बाप के घर के बारे में सोचती हूँ, मगर मैं जा नहीं सकती और ना ही माँ मेरे बहन भाइयों को छोड़कर मुझे मिलने आ सकती है। मुझे इस हरकत का पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा और है। तो यूं आयशा से मुलाकात के बाद मैं जब घर गई तो मैं खाला से मिली और मैंने उसको बताया कि आयशा मुझे ट्रेन में मिली थी। उसके पास जिंदगी की हर आसाइश है, मगर वो अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा है। उसकी माँ ने इतना कुछ होने के बावजूद उसे एक ही दुआ दी कि अल्लाह उसे खुश रखे। उसके बाद मैं अपने घर आई और अपने खामद से कहा, खामद को सारा माजरा सुनाया और इजाजत मांगी कि अगर आप कहें तो मैं इस माँ बेटी को मिलवा दूं। तो मेरे खामद ने बड़ी सख्ती से जवाब दिया कि जिस लड़की ने अपने बाप की पगड़ी को अपने पांव तले रौंद दिया, अपने भाई की इज्जत को गलियों में बर्बाद कर दिया, तुम उस लड़की से क्या उम्मीद रखती हो कि वो अपने माँ बाप की नहीं बन सकी तो तुम्हारी कैसे बनेगी। खबरदार, आइंदा के बाद उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। और मैं अपने दिल पर हाथ रख के यूं ही बैठ गई। तो जी नाजरीन, इस कहानी से इस आयशा लड़की की इबरतनाक जिंदगी के बारे में हमने आपको बताया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।